Assalamualaikum viewers, होप सो यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। आज हम जिस पोइम को देखेंगे मक्की कुरैशी की वो है द फार थिंग। तो हम जिस चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन ऑफ मक्की कुरैशी एंड देन we will see the background of poems titled The Far Thing, and then we will do analysis of our poem The Far Thing, and then we will see the writing style, and then we will observe themes. So let's start. First of all, we will see introduction of Makki Qureshi. Makki Qureshi is the first female poet of Pakistan. This is the most notable thing about her. She born in 1927 in Calcutta, which is India city, and she spent most of her childish time in India city, Ranchi. Then she moved towards Karachi, and after partition she remained there. Her mother was Shireen Makka. Her father was professor in Germany University. She was Zoroastrian by religion. Zoroastrian are those people who worship fire. मतलब कि जो लोग आग की पूजा करते हैं वो लोग पारसी या ज़ोरोएस्ट्रियन होते हैं. And she married to a Muslim man. The most challenging thing for her was that she was suffering from polio. As she was Zoroastrian means she was in minority and she was suffering from polio. So this was a challenge for her, and we observe these things in her poem. That means she was suffering identity crisis due to because her husband was Muslim and she was Zoroastrian, so there was mix up of identities and she was suffering from identity crisis and she was handicapped. And we will see how this influence, how this shortcomings, or how this thing has affected her life and how she described it in her poem The Far Thing. So as Makki Qureshi was patient of polio by birth, so with the passage of time she was facing the disease of arthritis, जो कि हड्डियों की बीमारी होती है, उसे arthritis कहा जाता है. So she was suffering this disease and she was facing very severe conditions. वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही थी. And this was the poem she wrote before her death when she was suffering from disease. ठीक है. And Makki Qureshi basically wrote three categories of poem. One is Buddhist poem, Buddhist, Buddhist, Buddhist poem, and other is reconciliation poem, and third one is occasional poem. And we see The Far Thing fall in the category of reconciliation poem. Reconciliation means to reconcile with situation. मतलब कि हालात के साथ ये नहीं कि ना समझौता सा कर लेना, हालात के साथ अपने आप को मुताबिकत कर लेना, हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना. तो हम वो चीज़ इसमें देखेंगे कि द फार थिंग में वो कैसे कहती है. रिकॉन्साइल का मतलब है कि चीज़ों के साथ यानी कि अपने आप को कंसाइल कर लेना, चीज़ों के साथ अपने आप को मिला लेना. ठीक है. तो फार थिंग में हम देखेंगे कि वो कैसे सिचुएशंस को बताती हैं, कल्चर हेरिटेज के बारे में बताती हैं. और फार थिंग का मतलब है बेसिकली द अनफुलफिल्ड डिज़ायर. द फार थिंग यानी कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं, दूर हमसे रह गई हैं, अनफुलफिल्ड हैं आप वो डिज़ायर्स. ठीक है. So we have done the background of poems titled The Far Thing. Next, which we are going to do is analysis of poem. So we will read it. She says, a white cone, wide open browed from a northern holiday to show my child after a decade in my drawer, I should throw it away. वो यहाँ पर कह रही है कि उसके पास एक पाइन कोन है, पाइन कोन जो कि वो एक नॉर्दर्न एरिया से लेकर आई थी. ठीक है. नॉर्दर्न एरिया से लेकर आई थी और वो उसने अपनी बच्चे को दिखाना था, अपनी डॉटर शीरीन को दिखाना था.
और उसने इसे अपने ड्रॉर में रखा हुआ है। वो इसे फेंक भी सकती थी लेकिन उसने नहीं फेंका। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि वो एक सिंपल से पाइन कोन से क्या उसका मीनिंग है। तो नेक्स्ट शी सेज आई सपोज ए वुड स्कल्पचर्ड फ्लावर द फाइनल कोरोला गार स्टेमन स्टिल इंटैक्ट, यानी कि वो ये कह रही है कि इसका वुडी सा टेक्सचर है और फ्लावर सी शेप दे रहा है, और जो से स्टेमन्स टाइप होते हैं ना पाइन कोन, यानी कि ऐसे जैसे फूल के स्टेमन्स होते हैं वैसे वो इसको गार्ड कर रहे हैं, यानी कि इसकी प्रोटेक्शन वगैरह कर रहे हैं। वो ये कह रही है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी है पाइन कोन के अंदर कि इट विल ग्रो इन रेन, कि ये दोबारा से ग्रो हो सके। एंड अ वाइट एयर हियर इन द डेजर्ट्स परपेचुअल वेदर इट गस्टेट्स अ टॉवरिंग कॉनिफर दैट विल नॉट हैपन। यहाँ पर कह रही है कि यानी कि अगर इसको डेजर्ट्स परपेचुअल वेदर भी मिले, यानी कि सख्त मौसम मिले, तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये ग्रो कर सके। इट गस्टेट्स अ टॉवरिंग कॉनिफर दैट विल नॉट हैपन, इट गस्टेट्स अ टॉवरिंग कॉनिफर, और ये टॉवरिंग बढ़ जाएगा, ये कॉनिफर बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो इसको ऐसा यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि पाइन कोन को बेसिकली किस चीज़ से रेफ़र कर रही है। पाइन कोन को यहाँ पर कल्चर से रेफ़र कर रही है कि यानी कि कल्चर हम लोग अपना भूलते जा रहे हैं, हम अपनी पुरानी सकाफत, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, वेज ऑफ लिविंग हम भूलते जा रहे हैं। और वो ये कह रही है कि उसने अपने यानी कि हम जैसे पिछले लोग हमें अपनी रवायात वगैरह बताते हैं, तो वो चाह रही है कि वो भी अपनी आगे बेटी को बताएं पिछली रवायात, लेकिन वो इसे ये और वो ये कहती है कि इसके अंदर यहाँ पर फिर वो कहती है कि इट विल ग्रो इन रेन, और फिर वो यहाँ पर ये बताती है कि हम जहाँ पर भी चले जाएं हम अपनी सकाफत इनके अगले अगर हम कंट्री में चले भी जाएं तो हम अपनी सकाफत जो सी हैं वो बहुत कीमती होते हैं, हम उन्हें नहीं भूल सकते, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। Through pine cone, she is showing us that we should not forget our culture. Even in foreign countries, we can use them anywhere. We should grow them in good environment. यानी कि वो ये कह रही है अगर हम अपने कल्चर को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो वो ग्रो अप हो सकता है। और नेक्स्ट लाइन में हमने देखा कि यहाँ पर फ्लावर का वर्ड यूज़ कर रही है। थ्रू फ्लावर शी इज़ बेसिकली शोइंग दैट आवर कल्चर इज़ अट्रैक्टिव, शी इज़ शोइंग इट्स स्ट्रक्चर, शी इज़ सेइंग दैट आवर कल्चर इज़ अट्रैक्टिव। फ्लावर लाइक आवर कल्चर हैज़ द एबिलिटी to grow again. If it is declining, it has the ability to grow again. We should try for it. We should try to be remain in contact. We should try to be remain intact with our culture. एंड शी इज़ शोइंग देयर हर ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिज़म मतलब कि होप ज़िंदगी में दिखाना, ज़िंदगी से मायूस ना होना, फ्रस्ट्रेशन ना दिखाना। और वो यहाँ पर कहती है कि इट विल ग्रो इन रेन, यानी कि इससे पहले बारिश की भी उम्मीद है और फिर इसे ये भी उम्मीद है कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक पाइन कौन है वो, यानी कि वो कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्टिमिज़म अपना शो कर रही है। पाइन कौन से बेसिकली वो कल्चर को शो कर रही है कि अगर हम इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये बढ़ सकता है आगे। इसे एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है और हमारा कल्चर अट्रैक्टिव है। और फिर नेक्स्ट लाइन्स में वो कहती हैं द कार्व्ड पेटल्स क्राउन और क्राउन आर लिफ्टेड टू नो विजिबल सन आई पुट इट बैक, यानी कि वो कहती हैं कि जो से इसकी पत्तियां हैं ना वो ऐसी हैं जैसे ताज पर ताज है, यानी कि वो खूबसूरती बता रही है इसकी कि तो इतना खूबसूरत है, ऐसे लगता है कि क्राउन पर क्राउन है। आर लिफ्टेड नो विजिबल सन आई पुट इट बैक, यानी कि वो यहाँ पर अगेन कह रही है कि हमारा कल्चर बहुत ही प्यारा है, लेकिन इसको यानी कि हम आर लिफ्टेड टू नो विजिबल सन, हम इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम रहना ही नहीं चाहते अपने कल्चर, अपने रिवायात, अपने तरीक़ों, अपने सकाफ़तों के साथ। सो आई पुट इट बैक, यानी कि हम इसको बहुत ही पीछे छोड़ रहे हैं। इट वॉज लाइक द ब्रॉन्जी charioteer, a readiness for the far thing, monolithic as a mountain pen, his wide gaze unfocused. He waits at the beginning, although the horses have bolted and the chariot was dust 3,000 years ago. He keeps a gambler's faith in his change of luck.
तो यहाँ पर वो हिस्ट्री को ले आई हैं। जो उनसे ब्रॉन्जी चार्टियर था ना, वो 3000 ईयर्स अगो ग्रीक स्कल्पचर था। और वो कैसा था कि उसके हाथ में ना ऐसे रस्सियाँ सी थी और उसके आगे घोड़े लगे हुए थे और बग्गी सी लगी हुई थी। ब्रॉन्जी चार्टियर मतलब बग्गी वगैरह, ठीक है। तो वो ये कहती हैं कि यानी कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है चीज़ें तो वैसे नहीं रहती, तो फिर यानी कि वो घोड़े भी टूट गए और वो यानी कि बग्गी भी टूट गई और उसके हाथ में सिर्फ अब रस्सियाँ हैं। यानी कि इट वाज लाइक द ब्रॉन्ज चैरियर रेडीनेस फॉर द फार थिंग मोनोलिथिक एज ए माउंटेन पाइन। मोनोलिथिक मतलब कि लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, यानी कि वो यहाँ पर स्ट्रेंथ को शो कर रही है कि ए माउंटेन पाइन, यानी कि वो यानी कि बता रही है कि माउंटेन वो पाइन कौन जो है वो यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इट वॉज लाइक द ब्रॉन्ज चैरियर ए रेडीनेस फॉर द फार थिंग मोनोलिथिक एज ए माउंटेन पाइन। हिज वाइड गेज एंड फोकस्ड। हिज वो यहाँ पर क्या कह रही है कि जो से चैरिटियर है, जो चैरिट को चलाने वाला है ना, उसे चैरिटियर कहते हैं। तो इसकी आंखें डिस्टेंट किसी चीज़ को देख रही, दूर किसी चीज़ को देख रही हैं और यानी कि कोई मंजिल यानी कि किसी खास चीज़ की तरफ नहीं, बस डिस्टेंस किसी चीज़ की तरफ देख रहा है। हिज वाइज गेज्ड अनफोकस्ड, यानी कि अनफोकस्ड सी हैं। ही वेट्स एट द बिगिनिंग ऑल्दो द हॉर्सेस हैव बोल्टेड एंड द चैरिट वाज डस्ट। यानी कि जो से हॉर्सेस वगैरह वो भी यानी कि टूट चुकी हैं, चैरिट पर भी डस्ट पड़ चुकी है, लेकिन वो स्टिल उसके हाथ में वही रस्सियाँ, यानी कि यहाँ पर होप शो कर रहा है। 3000 ईयर्स अगो, यानी कि 3000 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसने यानी कि चैरिट ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। ही कीप्स अ गैम्बलर्स फेथ इन हिज चेंज ऑफ लक। यानी कि वो यहाँ पर बता रही है कि गैम्बलर जो सट्टेबाज होते हैं, जो जुए खेलने वाले होते हैं, वो भी यानी कि उनको श्योरिटी तो नहीं होती कि वो जीतेंगे ही, लेकिन वो फिर भी खेलते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद हम जीत जाएं। तो फिर यानी कि वो ये बता रही कि उसने भी इसी तरह उन गैमलर्स की तरह अपने हाथ में यानी कि वो रस्सियों की तरह ऑप्टिमिज्म को शो करी है रस्सियों से, कि उसने भी उनकी तरह यानी कि हिम्मत वो नहीं हार रहा। वो यानी कि उसकी आंखें गेज हैं, वाइड गेज अनफोकस्ड। ही वेट्स, यानी कि वो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म के होप को शो कर रही है। तो द फार थिंग्स, यानी कि वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर को शो करिए कि कैसे हमारा कल्चर डिक्लाइन हो रहा है, और अगर हम इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये अगेन ग्रो अप हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अट्रैक्टिव वुड स्कल्पचर्ड फ्लोर। और इसने इधर हिस्ट्री को भी रेफर कर दिया है। तो हम इसके राइटिंग स्टाइल को देख लेते हैं। राइटिंग स्टाइल इस पर इसने क्या किया है कि इसने इसमें सिमिली यूज़ की है। सिमिली कैसे यूज़ की है कि इसने ना ब्रॉन्जी चैरिटियर और पाइन कोन को यानी कि कहती है कि यानी कि वो जो सा पाइन कोन है वो ब्रॉन्जी चैरिटियर, जैसे कि कहती है कि इट वाज लाइक द ब्रॉन्जी चैरिटियर वो। और फिर यहाँ पर एल्यूजन दी है। वो एल्यूजन कैसे देती है, वो रेफरेंस देती है। रेफरेंस किस चीज़ का देती है, ब्रॉन्जी चैरिटियर का देती है, हिस्ट्रिकल रेफरेंस है यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट जो से हम ऑप्टिमिस्टिक मूड इसका देख सकते हैं, यानी कि पैसिमिज्म नहीं है। पैसिमिज्म मतलब कि डार्क साइड देखना, और ऑप्टिमिस्टिक है कि यानी कि होप को देखना। तो फिर हम यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक मूड या अप्रोच को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव टोन है, कन्वर्जेशनल स्टाइल है, यानी कि वो डिस्क्राइब कर रही है, वो यानी कि ऐसे टोन अपना रख रही है जैसे वो हमसे कन्वर्सेशनल यानी कि गुफ्तगू हमसे कर रही है, हमें बता रही है एक छोटी सी चीज़ से वो कितनी बड़ी बात हमें बता रही है। और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी हैं कि यानी कि वो भी यानी कि ख़ुद भी वो पैरालाइज्ड वो पोलियो की पेशेंट थी, ठीक है। और फिर इसमें वो हम थीम्स में देखेंगे कि कैसे यानी कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी हैं। और फ्री वर्ड्स इसने इसमें यूज़ किए कि हम देखते हैं कि कोई यानी कि स्टाइल रिदम वगैरह नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू वो कंटेंट पर फोकस करना चाहती थी, नॉट ऑन स्टाइल। शी वांट टू शो अस, शी वांट टू रियलाइज अस द थिंग्स विच वी आर फॉरगेटिंग। और बॉटनिकल इमेज भी यानी कि इमेजरी भी इसने यूज़ की है, प्लांट्स के थ्रू, नॉर्दर्न वर्ड्स के थ्रू। तो और फिर वो हमेशा एंथोलॉजीज़ में अपने वर्क को पब्लिश करती है। द फार थिंग इसकी एक पोइम ही भी है और इसका एक वर्क भी है। ये पोइम है और इसका एक वर्क भी है द फार थिंग, और वो हमेशा एंथोलॉजीज की फॉर्म में पब्लिश करती है अपने वर्क को। मोस्टली एंथोलॉजीज़ क्या होती हैं, कलेक्शन और लिटरेरी वर्क्स चोजन बाय द कंपाइलर।
so that to provide potential reader with easy access to a wide range, यानी कि रीडर जो है वो आसानी से किसी भी चीज़ तक, यानी कि जब कंपाइल होगी कोई चीज़ तो वो आसानी से पहुंच सकेंगे। तो अपने वर्क को एंथोलॉजीज की फॉर्म में पब्लिश करती है और वो अपना वर्क फ्री वर्ड्स में लिखती है। और सेटिंग इस पोइम की है कराची की, वो कराची की सिटी में रहती थी और यहाँ पर भी, और ये पोइम उसने कराची की सिटी में लिखी है। So next thing which we are going to do is themes of the poem. Themes of this poem hold the pith of Makki Quraishi's message. Image nahi, message. It is the themes of this poem which make the three images of Makki Quraishi, the pine cone and the bronze charioteer stand together. These three primary images in the poem shares the three themes of the poems. Let us analyze these themes in detail. अब हम इन थीम्स के थ्रू देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। फर्स्ट इज़ अरेस्टेड ग्रोथ और डिसेबल्ड मोबिलिटी। जैसे कि हम देखते हैं कि पाइन कौन है, वो भी यानी कि अब स्टक हो गया, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। मक्की कुरैशी भी वो अपने पोलियो की बीमारी की वजह से यानी कि वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, वो भी यानी कि एक लोनलाइंस का शिकार रहती है। इसकी पोएम क्रिसमस लेटर टू माई सिस्टर विच आई हैव कवर्ड, तो उसमें हम देखते हैं कि शी इज़ शोइंग टू मच लोनलाइंस दैट शी, एंड in that poem we also see that she is saying come December, in that poem she is also showing optimism, and this poem she has also shown optimism, but we see that there is arrested growth or disabled mobility by seeing the connection between Makki Quraishi, pine cone and bronze charioteer. Bronze charioteer was also standing in that place and he was gazing unfocused. He was also unable to move. Pine cone has also stuck. Its growth was stuck and Makki Quraishi was unable to move. So these things are connected with each other. Next is the far thing or unfulfilled desire. ठीक है। Other element that is common among the poetess pine cone and the bronze charioteer is their collective wistful longings, where pine cone longs to grow to its full potential someday and resume its development. The bronze charioteer also yearns to be able to ride on its chariot again. On the other hand, Makki Quraishi, who has lived her life in the pain of disability, wishes to be normal like the people around her. These themes stand at the center of the poem, as is evident from the very title of the poem being the far thing, यानी कि जैसे पाइन कौन है वो भी ख्वाहिश करता है कि वो भी आगे बढ़ जाए, जैसे चार्ट है वो भी कहते हैं कि वो ये अपनी सवारी को यानी कि वो जो एक जगह खड़ा हो गया वो भी उसको जीन्स मतलब किस चीज़ की ख्वाहिश करना कि वो भी यानी कि वापस अपनी जो भी यानी कि चाइल्ड वगैरह था उसके पास, तो वो उन चीज़ों को वापस हासिल कर ले, वो अपने राइड अपनी सवारी फिर से स्टार्ट कर ले। और मक्की कुरैशी भी who has lived her life in pain of disability wishes to be normal like people around her, यानी कि उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो दूसरे लोगों की तरह देखे। तो हम इसमें देखते हैं कि ख्वाहिशात हैं कि यानी कि इन तीनों की ये कनेक्शन है। और नेक्स्ट इज रेडीनेस। रेडीनेस मीन्स द विलिंगनेस टू अचीव व्हाट वन वांट्स। We have seen the word readiness in her poem she has used. In the poem, all three elements seem to have the necessary determination to fulfill their desires. They lack the ability. This word readiness used by Makki Quraishi takes its origin from Shakespeare's play Hamlet. Hamlet showed keen readiness to take his life, yet he learns later that time is limitless and his death would not end his painful time. Makki Quraishi, by borrowing this word from Hamlet, reflects her own willingness to die. But since it is a reconciliation poem, she overcomes this fatal desire and gives a message of optimism in the end. यानी कि readiness means the willingness to achieve what one wants, यानी कि किसी चीज़ की जो ख्वाहिश है ना, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना और उसके लिए रजामंदी शो करना, यानी कि जो हम यानी कि किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश हम करते हैं और फिर हम चाहते हैं उसके लिए रजामंदी शो करते हैं कि वो हमें मिल जाए। तो फिर हम इसमें देखते हैं कि तीनों के अंदर ख्वाहिश है कि वो यानी कि कुछ ना कुछ हासिल कर लें। और जो से ये वर्ड है रेडीनेस, उसने शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में से यूज़ किए, जहाँ पर जो से हैमलेट था उसकी ये डिज़ायर थी कि वो अपनी ज़िंदगी ले ले, बट लेकिन फिर उसी बाद में एहसास हुआ कि डेथ विल नॉट एंड हिज पेनफुल टाइम।
सो मक्की कुरैशी ने ये वर्ड हैमलेट से लिया और फिर वो भी यानी कि विलिंग थी डाई मरने के लिए, वो भी यानी कि ख्वाहिशमंद थी, लेकिन फिर उसने ये ख्वाहिश तर कर दी और फिर एंड में उसने हमें ऑप्टिमिज्म का मैसेज दिया है. So it was all. I hope that you have understood it very well. If there is still any query, you people can ask in comment. Thank you for listening.